प्रॉपर्टी आई गेस डिस्कस किया था, मास वाला वी हैड डिस्कस्ड, राइट गाइस? Yes, sir. अच्छा, so we had discussed about this mass ka thingy, and now we will be so one property which we discussed was mass. The second important property, measurable property of gas is volume. Gas does not have a fixed volume. Gases do not have a fixed volume, but whatever is the volume of the container they are in, the room they are in, okay, the boundaries they are within, that is the volume of the gas. So obviously I can measure the volume of the container or the room or the boundaries in which the gas is present. So that is going to become the volume of the gas. Simple as that. Am I right, guys? Yes, sir. ठीक है, तो अभी अगर 1 लीटर बोतल के अंदर मैंने गैस भरा हुआ है तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 1 liter. 1 liter. वेरी गुड. लीटर में करेंगे, मिलीलीटर में करेंगे. व्हाट इज मिलीलीटर? 10 to the power minus 3 liters. Am I right? Yes, sir. मिली Yes. मिली मतलब 10 to the power minus 3, नहीं? Yes, sir. अच्छा. Then you have मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर और सेंटीमीटर क्यूब. ये भी एक यूनिट हो सकता है आपका, क्या बोलते तो भी वॉल्यूम का. वन ऑफ द यूनिट्स इज मीटर क्यूब. हाउ ये मीटर क्यूब कैसे आता है बेटा? लेंथ, ठीक है, ब्रेथ और ये हाइट, है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Length is in meters, breadth is in meters and height is in meters. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तीनों का यूनिट मीटर है तो क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब. अगर सेंटीमीटर में हुआ तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब. अरे Yes, sir. Yes, sir. okay. अच्छा, so these are the different units which we are talking about. लीटर का ऑल्टरनेटिव क्या है बेटा? डीएम क्यूब. किया है ये फर्स्ट चैप्टर में. Yes, sir. Yes. अच्छा, so when we talk about conversions, how many, चलो ये लिख लिया तुम लोगों ने? Yes, sir. Units of, मैंने भी. units of volume which we are going to come across in our studies. So you can write it like this: 1 liter is equal to how many milliliters, guys? Any idea? 1000 milliliters. 1000 milliliter. Milliliters, or it is equal to 1000 centimeter cube. ठीक है? Which is equal to 1 dm cube. So 1 liter बोलो या फिर 1 dm cube बोलो, one and the same thing. Okay, decimeter cube and liter is the same unit. Am I clear, guys? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Acha. Acha. So can someone tell me what is going to be the relation between this? 1 meter cube is going to be 10 to the power 3 decimeter cube. है ना? नहीं? अरे yes or no? Yes, sir. Yes, sir. If it is 10 to the power 3 decimeter cube, it will also be 10 to the power 3 liters, because 1 liter is 1 decimeter cube. So 10 to the power 3 decimeter cube will be 10 to the power 3 liters. हाँ sir. है ना? इसको मैं मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूं? मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करूंगा? ये कन्वर्जन याद रखना, इंपॉर्टेंट. यहाँ पे किसी को नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी राइट अवे. दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है बच्चे, इसमें गड़बड़ नहीं करना है, वरना न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ होता है अपने से. ठीक है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट.
इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्यूब डेसीमीटर क्यूब। अभी क्या सीन है ना बेटा, हम लोग गैस को लीटर्स में या फिर डेसीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, अभी जनरली हम लोग लिक्विड जो होता है वो लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, 10 लीटर तेल, है ना, Yes, Yes, sir. Yes, sir. राइट। And gases के लिए we generally tend to stick to decimeter cube, although the units are same. ठीक है, we can also express in meter cube. Okay, we can also express in meter cube. So, has anybody got an idea about the conversion between meter and centimeter? 1 meter is how many centimeters? 10 raised to 2. 100. 100. 100. yes, What is 100 centimeter? 10 square centimeter. Yes, sir. Because Yes. 100 is 10 square. ठीक है बेटा? अब I am talking about 1 meter cube. मतलब मैंने इसको क्यूब किया तो मुझे इसको भी क्यूब करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? 10 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब। So 1 meter cube is 10 to the power 6 centimeter cube. नहीं? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. समझा ना बेटा? 1 meter is 10 square centimeter. 1 meter cube, अगर मैंने इसको क्यूब किया तो मुझे यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा ना। ए बेटा, 1 cube क्या होता है? 1 ना? 1 cube is 1 meter cube. 10 square cube is 10 to the power 6. A raised to m raised to m is equal to a raised to m into n. Laws of indices. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 10 टू द पावर 6 कैसे हो गया, ठीक है गाइस? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक और तरीके से देख सकते हो, ठीक है? 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर। इफ आई राइट इट इन द टर्म्स ऑफ मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो 1 मीटर इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। बेस सबका सेम है, ये क्या हो जाएगा? ऊपर ऐड हो जाएगा इंडाइसेस 10 टू द पावर 6। दोनों में से कोई भी तरीके से करो, इट द आंसर इज गोइंग टू बी 10 टू द पावर 6। Am I clear to everyone or there are confusions? If there are confusions, I would like to address them right away. I am assuming there are no confusions. Atharva, all clear बेटा? हाँ सर, हो गया. लिख लिया सबने? आपको लिख तो लिया पर आपको समझ में आया ना कैसे हो रहा है ये? Yes, sir. अपने को ये यूनिट्स यूज करना है बेटा। यूनिट्स का ना बहुत बड़ा टर्न पॉइंट हो जाता है न्यूमेरिकल में अगर आप यूनिट्स बरोबर नहीं लिए हैं या फिर गलत किए हैं। सो हमने दो मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखे गैसेस के बेटा, वन इज मास एंड द अदर इज वॉल्यूम। सो मास एंड वॉल्यूम, टू मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। द थर्ड वन वी विल गो ऑन टू इज द प्रेशर। ये जो होती है ना बेटा, ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग लॉज देखने वाले हैं गैसेस के। तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज एक गैस को डिफाइन कैसे करती है, ठीक है? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर एक्चुअली डिफाइनिंग द गैस। एक गैस की पहचान है। गैस का खुद का कोई शेप या फिर साइज फिक्स नहीं होता है, मास फिक्स होता है, बट उसको जब हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि भाई ये गैस का ये है तो एक पर्टिकुलर गैस को मैं रेफर कर रहा हूं। अब अगर मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन तो इस रूम में भी है, ऑक्सीजन बाहर भी है, ऑक्सीजन मेरे अंदर भी है, ऑक्सीजन इस बोतल में भी है, राइट? तो अब भाई कितना ऑक्सीजन, कितना उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कहां से मिलेगा? जिस कंटेनर के अंदर है। तो जब मैं वॉल्यूम स्पेसिफाई करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से ऑक्सीजन का बात कर रहा हूँ, बोतल वाले, रूम वाले की बाहर वाले। थोड़ा आइडिया आ रहा है मैं क्यों वॉल्यूम को स्पेसिफाई करने की बात कर रहा हूँ? Yes. Yes, sir. yes, sir. अच्छा, अब देखते हैं प्रेशर। ए बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? पढ़ा है ये लोअर स्टैंडर्ड्स में? Yes, sir. Force upon area. हाँ, वेरी गुड बेटा। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया।
force acting per unit area, force acting per unit area, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर को पता है ये ऐसे होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैंने ये वाला टर्म ऊपर लिया ना तो क्या हो जाएगा, इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ये सबको पता है? Yes, sir. अगर नीचे कोई पावर वाला टर्म है और उसको मैं ऊपर लेता हूं तो उसका पावर जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो व्हाट इज द यूनिट फॉर फोर्स? फोर्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ऊपर लिया तो nm-2 हो जाएगा। एंड एरिया, व्हाट इज एरिया बेटा? एनीवन? Meter square. हाँ सिंपल। ए बेटा मेरे पास एक क्यूब है, चल रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ. Yes, sir. स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड इज m एंड m, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? m Side स्क्वायर, square. साइड स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया वहां से आता है बेटा, वॉल्यूम एरिया से बड़ा रहेगा। क्यों? वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, एक हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए m क्यूब हो जाता है। तो guys, so what is going to be this entire unit? मतलब ये देख ऐसा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये पर मीटर स्क्वायर अगर नीचे आ जाएगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n into m⁴। ये m स्क्वायर नीचे आ जाएगा, m स्क्वायर into m स्क्वायर is m⁴, बट मैं इसको ऐसे यूज नहीं करूंगा, लेट इट बी लाइक दिस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। You know what is Newton per meter square called as? Pascal. Very good. It is called as Pascal, right? So can I say this? It can be Pascal per meter square, Yes. है ना? It Yes. can be Pascal per meter square. अच्छा, तो ये एक हो सकता है। And you know what is the unit of अपना ये जो प्रेशर होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी प्रेशर के बारे में। Gas has two types of pressure. Can someone tell me what was it? No? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आई रिमेम्बर, संडे को बताया था, एक हफ्ता ही तो हुआ है पढ़ा कर। Pressure on gas and pressure of gas. एक्सीलेंट। कौन बोला ये? Sir, Abhishek. अभिषेक। वेरी गुड अभिषेक। We have two types of pressure, pressure of gas and pressure on the gas. गैस का प्रेशर और गैस के ऊपर प्रेशर, ये दो अलग अलग प्रेपोजिशन उसका पूरा मतलब बदल देगा बेटा। व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज समथिंग व्हिच टेल्स यू द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट? तो प्रेशर ऑफ द गैस, गैस प्रेशर दे रहा है, प्रेशर ऑन द गैस, गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस टू टाइप्स ऑफ प्रेशर्स। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, when gas is colliding with the walls of the container, that is pressure of the gas, और जब हम ढक्कन से, पिस्टन से ऊपर से दबा रहे हैं, that is the pressure on the gas. समझा. ओके ओके कूल, ठीक है। तो हम लोग ना एक सिंगल यूनिट रखेंगे प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए we will use a single unit, and that one single pressure के लिए units will be somewhere like bar, it can be torrential pressure, it can be millimeters of mercury column, it can be centimeters of mercury column, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से the device which we are using to measure the pressure is called as barometer beta. Barometer, bar is nothing but a unit of pressure. तो प्रेशर्स को ना हम लोग मेजर करने के अलग अलग डिवाइसेस रखते हैं। आप लोग ने ब्लड प्रेशर का मशीन देखा है? वो ब्लड प्रेशर वो फुस करते तो Yes, उसमें sir. मर्क्यूरी ऊपर Yes, जाता है, and the normal blood pressure should be in the range of 80 to 120, something like that, right? Yes. हाँ, तो वैसे ही ना किसी गैस का प्रेशर अगर मुझे मेजर करना है, आई डोंट नो गाइस हु आर हैविंग साइकिल के टायर का प्रेशर या फिर स्कूटी के टायर का प्रेशर या कार के टायर का प्रेशर आप लोग ने कभी चेक करवाया गैराज में जाकर के? उसके पास एक ऐसा एक वायर सा रहता है जिसपे ऐसा नॉब लगा रहता है, वो अपने सपोज दिस इज द टायर, ये टायर है
टायर के यहाँ पे एक स्पाइक रहता है, तो वो ये स्पाइक के अंदर रहता है. दिस इज कनेक्टेड टू अ सर्कुलर मशीन जिसमें ऐसा डायल रहता है. जैसे वो पुश करता है, ये जो डायल है वो यहाँ से यहाँ मूव होता है. देखा है आपने कभी? Yes, sir. बॉयज, गर्ल्स, हैव यू सीन दिस? ऐसा इसको वो टायर के ऊपर रखता है तो यहाँ पे ऐसा आवाज आता है, प्स, आवाज आता है, और ये शिफ्ट होता है, ये हैंडल जो है शिफ्ट होता है. वो आपको बताता है कि कितना प्रेशर है टायर के अंदर. एयर का प्रेशर, एयर इज एक्सपैंडिंग इनसाइड द टायर ना. ज्यादा एयर भरा तो टायर फट जाता है, पता है आपको गर्मियों में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इट इज बिकॉज गैस एक्सपैंड्स एंड ऑल ना बेटा, ठीक है. तो वो मतलब जैसे ही जैसे थर्मोमीटर का मैंने आपको बताया था, मर्क्यूरी का एक लेवल होता है तो उस पर चेक करते हैं. वैसे ही वो डिवाइसेस के अंदर ना मर्क्यूरी का कॉलम रहता है. जैसे जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो मर्क्यूरी का एक हाइट होता है. तो मर्क्यूरी का कितना हाइट है वो बैरोमीटर के अंदर, उसको हम लोग एक यूनिट करके लिखते हैं, दीज मेनी मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, दीज मेनी मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज पूछो बेटा मेरे से, प्लीज पूछो. पास्कल मैंने आपको बताया क्या होता है. वन बार इज 10 to the power 5 pascals. वन बार इज 10 to the power 5 pascal. व्हाट इज पास्कल बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला जो यूनिट है प्रेशर का. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पास्कल. ठीक है. Yes. वन बार इज नाउ, बाय लुकिंग एट दिस कैन यू टेल मी वन बार इज अ बिगर यूनिट और अ स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर? कोई मुझे देख के इसको बता सकता है? वन बार इज बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट, एंड इफ बिग वाई, इफ स्मॉल वाई. वन बार, what I'm asking is, वन बार बड़ा होता है कि वन पास्कल बड़ा होता है? That is what I'm asking. One bar is bigger bar. or one pascal One is bar. bigger? Sneha says bigger. Who is bigger beta? One bar or one pascal? One बार बड़ा है कि पास्कल Bar. बड़ा है? वन बार बड़ा है. One bar. One bar is bigger than one pascal. Why? Because 10 to the power 5 मतलब 10,000 नहीं, 1 lakh. 1 lakh pascals means one bar. समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes. So 1 bar of pressure is like a good amount of pressure. ठीक है. So conversion आया आपको, अगर पास्कल दिया है और आंसर बार में पूछा है तो आप लोग 1 bar is equal to 10 to the power 5 पास्कल, ये कन्वर्जन यूज करेंगे. Am I clear to everybody? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको भी हम लोग मेजर करते हैं एंड उसका यूनिट होता है ATM. तो मैंने आपको बताया ना बैरोमीटर, वो प्रेशर को मेजर करने का मशीन होता है जिसमें मर्क्यूरी उठता है तो कॉलम का बताता है. 1 ATM प्रेशर इज इक्वल टू 76 centimeters of mercury column. It can also be written as 760 millimeters of mercury column. ये बेटा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10 का फर्क होता है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 होता है ना, Yes, इसीलिए sir. 76 और 760 हो जाएगा. So 1 ATM, 1 atmospheric pressure is 760 millimeters of mercury. 1 ATM is again a unit of pressure. हमने अभी तक प्रेशर का कितना यूनिट देख लिया? 3, पास्कल, बार एंड ATM. पास्कल, बार, ATM. एक्चुअली 4 देखा है. कौन से चौथा कौन सा है बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वो तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था. अभी इसमें देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है तो चौथा यूनिट है. जो चौथा यूनिट है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है. टॉर. क्या बेटा? mm of hg. mm of hg. वेरी गुड. मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको. ठीक है. mm of hg. एक और प्रेशर का यूनिट होता है which is called as torr, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. one torr again it is measured in the terms of millimeters and centimeters of hg. 1 torr is 1 millimeter of mercury column. छोटा प्रेशर, torrential pressure. 1 torr is
1 mmg. So can someone tell me how much is 760 mm of Hg? Obviously 760 torque. So 1 atm is also equal to 760 torque, torrential pressure. If one torque is 1 mm of Hg, 1 mm of Hg. So how much is 760 mm of Hg? 760 torque, because 1 torque is this much, 760 mm is this much, so 760 torque यही हो जाएगा ना. Yes, sir. A is equal to B, B is equal to A, so A will be equal to B. ऐसा कुछ तो फंडा है इसके अंदर. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को? मैं इसको प्रॉपरली लिखता हूँ. 1 bar, सबसे पहला यूनिट ऑफ प्रेशर. सबसे पहला यूनिट ऑफ प्रेशर इज Pascal. It can be Pascal or it can be kilopascal. How will you go toward the bigger unit? 1 bar is equals to 10 to the power 5 Pascal. ये समझा सब लोग को? Bar is the unit. Is this clear, everyone? 1 bar is equal to this. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं जो बाहर है. 1 atm is equals to 760 millimeters of Hg. Is equals to 760 millimeters of Hg. That is also equal to 760 torque. That is also equal to 760 torque. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 mm of Hg is equals to 760 torque. नहीं, 1 torque, right? Is equal to 1 torque. ये बेटा ये torque क्या है? फुल फॉर्म क्या है torque का? It is the unit of pressure. Now, what is the full form? Torrential pressure मैंने बताया था ना आपको. नहीं समझ रहा है बेटा? Please be honest with me. It is just simple conversion of units. Right? Are you understanding? Or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. जी मतलब क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? जी मतलब क्या? क्या फिर से can you come again? थोड़ा जोर से please. सर Hg मतलब क्या? Hg मतलब मर्क्यूरी बेटा, मर्क्यूरी कॉलम मैंने बताया था ना आपको. ऐसा मशीन देखा तुमने ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त? वो ब्लड Sure. प्रेशर के अंदर ऐसा फुस फुस Yes, sir. करता है, तो इसमें मर्क्यूरी ऊपर नीचे होता है. हाँ. Sure. मर्क्यूरी Hg इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी ना बेटा. हाइग्राग्रियम Yes. लैटिन वर्ड. ठीक है. तो ये यहाँ पे स्केलिंग करा हुआ है, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स करा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. तो कितना मर्क्यूरी चढ़ा उतना प्रेशर आया, उतना उसका प्रेशर हुआ. Normal blood pressure is in the range of 80 to 120. Lower side 80, upper side 120. उसके ऊपर गया तो high, उसके नीचे गया तो low. Yes, sir. You guys need to speak. If you are not understanding, speak. Keeping quiet is not going to help you or me. You have to speak, beta. Are you Yes, sir. understanding? It's either a yes sir. or a no. I Yes. guess there are some guys, 60 students in the class, and like only 1 and 2 are answering. How is this possible? I'm on this side of the mobile, so I cannot see if you are sending me any message or something. I need this platform is giving you the ability to directly talk to the teacher. Speak, beta. Just do not be connected on the क्या बोलते हैं वर्चुअल बेसिस पे. बात करो बेटा प्लीज. फॉर्मेलिटी के लिए लेक्चर क्यों कर रहे हो? आप लोग समझो चीजों को.
यहाँ तक समझ में आया? दिस इज, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं, जस्ट कन्वर्जन। 1 atmospheric pressure is equal to so many kilopascals। एक किलो का मतलब समझते हो? किलो पास्कल का मतलब क्या होता है? 101.325 into 10 to the power 3 पास्कल। किलो मतलब क्या होता है? 10 to the power 3, ये सबको पता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 101, ये डेसिमल पॉइंट 3 से शिफ्ट हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 है तो 1 atm इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। 1 atm इज 101,325 किलो पास्कल। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो बार है, एटीएम है, these are all bigger units of pressure, right? They are all bigger units of pressure and pascal is a very small unit of pressure बेटा। अरे बोलो Yes, sir. Yes, sir. yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा अच्छा। एंड दिस 1 atm, ये जो 1 atm है, it is approximately equal to 1 bar। It is approximately equal to 1 bar। मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, कोई मुझे बता सकता है मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है, मैंने कंप्लीटली बोला भी नहीं। One ATM is equal to 101,325 pascals। 1 ATM is equal to 101,325 pascal। ये सबको समझा? It's a हाँ, sir. conversion। ठीक है? Yes, sir. 1 bar is equals to 10 to the power 5 pascals। What is 10 to the power 5 pascal? 1 lakh. 1 lakh. 1 2 3 4 5 जीरो रहेगा एंड पास्कल। भाई अब आप इसको कंपेयर करो, 101,325, 1 lakh, 1,01,325 एंड 1 lakh ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट Yes. सेम है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 1 ATM is equal to 1.01325 बार। ये बेटा 1.01325 को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकता हूँ ना? यस और Yes, नो? sir. ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखा है। आपको 10 स्टैंडर्ड में इसको सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइन था ना बेटा, अप्रोक्सीमेटली का साइन ये होता है। जब कॉन्फिडेंटली इक्वल होता है हम लोग स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, और जब लगभग आसपास का वैल्यू होता है तब हम लोग ऐसा उल्टा सोएला एस बनाते हैं। इज दिस क्लियर गाइस? प्रेशर का Yes, yes, sir. 1 bar is 10 to the power 5 pascal। 1 ATM is 760 millimeters of mercury or 760 torr। 1 ATM is also 101,325 pascals and 1 ATM is approximately equal to 1 bar। तो ये कन्वर्जन आई नो एक साथ याद नहीं होंगे, धीरे धीरे याद होंगे, बट याद कर लेना, ठीक है? अपने को न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले। ये लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी इन द क्लास? सर पास्कल का न्यूटन मीटर में क्या यूनिट है? क्या बोल रहे हो बेटा? पास्कल का न्यूटन मीटर में यूनिट बताओ ना। अरे आपने बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज पास्कल बेटा। उसी को हमने साइंटिस्ट का नाम दिया है। पास्कल किसका नाम है? साइंटिस्ट का, है ना? Yes, sir. मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना वो बेटा। Yes, sir. यस एनीवन? सर आपकी आवाज हटा। क्या बोल रहे हो बेटा? 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा। स्टार्टिंग में बताया था ना, 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही पास्कल है बेटा। उसको नाम दे रखा है पास्कल का। फिर यहां से अपन अलग अलग यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करते हैं। Yes, sir. कैन आई रब दिस? सबने लिख लिया? Yes, सर sir. एक सेकंड। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोल रहा है बेटा? न्यूटन पर मीटर माइनस स्क्वायर है क्या? हो गया। पास्कल। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। कौन बोल रहा है बेटा? आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, मुझे आवाज नहीं है। सर वो पास्कल लिखा है ना?
फिर से बोलो। हेलो guys, can anybody hear him? Can you please tell me what he's saying? I really cannot No, hear him. sir. बेटा आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, आप टाइप कर दो बच्चे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द ओरिजिनल यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बट इट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रेशर। इसी को हमने पास्कल का नाम दिया हुआ है। बार, एटीएम, ठीक है, ऑल दीज आर बिगर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, ऑल दीज आर बिगर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्री प्रसाद, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है श्री प्रसाद। Sri, you can send a message and tell me now, or you can send the message. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Yes, Sri, you are right. Yes, that is what I have written over here on the board. If you can see, yes. What are you asking now? Tell me, beta. अब आप क्या पूछ रहे हो मुझसे? पूछो, बोलो. I'm waiting on the other side of the camera to read your message, beta. I cannot see the message when I'm over here. My -2 पूछ रहा है। Why -2 बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना बेटा, प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज प्रेशर, दिस इज एरिया एंड दिस इज फोर्स। फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, इज मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर। सर वही हेलो क्या फालतू के कॉल आते रहते हैं यार सैटरडे संडे। गाइस, Sri, am I clear, Sri? Sri, bacha, your voice is breaking very badly, bache. Can you please message? Can you please text? Can I rub this from the board? Is it clear to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना है, ये अपने को काम आएगा इसके अंदर न्यूमेरिकल्स में। वेट, डोंट वरी, आई विल, मैं जहां लगेगा अपने को, आई विल डेफिनेटली टेल यू कहां पे लगने वाला है। These are the 3 measurable properties. The 4th measurable property is temperature. What is temperature, beta? Temperature is the degree of hotness of a body. Temperature tells you कि heat इस system से बाहर जाएगा कि system के अंदर आएगा। कैसे पता चलेगा बेटा? अगर किसी बॉडी का, अगर किसी मैटर का टेम्परेचर ऑलरेडी अप है तो उसके अंदर हीट आएगा कि उससे हीट बाहर जाएगा? बाहर जाएगा। बाहर जाएगा। और अगर उसका टेम्परेचर लो है तो वो सराउंडिंग्स का हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर मैं आइस को बाहर रूम टेम्परेचर पे रखूं तो वो हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगा। वही सेम वाटर को अगर मैं फ्रीजर में रख दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो फ्रीज हो जाएगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग? Sir. टेम्परेचर के लिए द यूनिट व्हिच विल बी यूजिंग इज केल्विन। केल्विन कैसे होगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जो भी टेम्परेचर आपको दिया है डिग्री सेल्सियस में, यू विल ऐड 273 टू इट टू गेट केल्विन। मैं इसको डिटेल में पता है क्यों नहीं बता रहा हूं? आई एम अज्यूमिंग ये आपको फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है बेटा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स वगैरह भी मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है। So I hope you know Kelvin is a unit of temperature, and to convert degree Celsius into Kelvin, you have to add 273 to the degree Celsius temperature. Yes, sir. Yes, sir. Right. So we'll be using this. Then can we measure any other property of the gas which you think? Can we measure the density of the gas, guys? Yes or no? Yes, sir. Why can we measure density? If we can measure mass, if we can measure volume, what is density? Density is mass upon volume. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So obviously density is mass upon volume. तो हम लोग density भी इसका measure कर सकते हैं।
mass is in kilograms and volume is meter cube. So unit क्या हो जाएगा? Kilogram per meter cube, or it's going to be gram per centimeter cube. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Mass is kilogram and volume is meter cube. Meter cube को ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा? m raised to -3. This is MKS. This is CGS. Are you aware of MKS and CGS? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. MKS system, CGS, meter, kilogram, मीटर second, किलोग्राम सेकंड centimeter, gram, सेंटीमीटर seconds. ठीक है बेटा? यस सर Yes, sir. Okay. ये density भी होगा. There will be many times where you will be comparing the density of a gas to the relative density of hydrogen. ठीक है बेटा? To the relative density of hydrogen, and that is called as the vapor density. Vapor density कैसे निकालेंगे? Molar mass of the gas divided by 2. This is how you will find out the vapor density of a gas. This is the formula to find out the vapor density of the gas. Molar mass divided by 2. Are you aware what is vapor density? क्या आपको No, sir. density के बारे में बताया गया है guys? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, okay. सर आपके Yeah, sorry guys. Am I audible now? Yes. है ना? Sorry, I got a call. So वो थोड़ा important call था. I have to take the call. Yeah. Vapor density and molar mass. ठीक है? Vapor density is nothing but the comparative density. Density of the lightest gas. Which is the lightest gas? Anybody can tell me quickly? Hydrogen. Hydrogen. Very good. The Hydrogen. very first element of the periodic table, which is hydrogen. Hydrogen is the lightest gas. क्यों? उसका मास सबसे हल्का होता है. Simple सी बात है, right? अभी vapor density of any gas, say chlorine, say sulfur dioxide, say oxygen, say nitrogen, whatever gas I'm talking about, vapor density is nothing but उसका density in comparison to the density of hydrogen. Hydrogen का density कितना होता है पता है? Anybody? Any idea? This is a tricky one, but a easy one if you focus. First, think about the formula for density. What is the formula for density? Mass upon Mass upon volume. Guys, you do. Speak ना. बेटा तुम लोग को मुझसे डर लगता है या कि क्या हो रहा है मुझे बताओ. I want to interact with students. I want you guys to speak सर आपकी up. आवाज भी और बहुत आप लोग जब बोलते नहीं हो तो I feel very disheartened. I feel like you will not understand. Density is what बेटा आपके सामने Mass लिखा हुआ है. upon Mass volume. Mass upon upon volume. What volume. is the mass of one molecule of hydrogen? And we are considering unit volume. So what is going to be the density of comparative density of hydrogen? It's going to be 2. But actually में हाइड्रोजन का मास 2 होता है क्या? नहीं. No, sir.
हिंदी में तो इट इज सम 1 point something into 10 to the power minus 24 किलोग्राम ऐसा मास रहता है, बट हम लोग वैसा मास हम लोग वहां पे नहीं लिख सकते ना पीरियोडिक टेबल में बेटा, राइट? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपैरेटिव मास निकालते हैं। किसका कंपेयर करते हैं बच्चे अपन लोग? हम लोग कंपेयर करते हैं कार्बन 12 C12 के 1/12 आइसोटोप से। फर्स्ट चैप्टर, हाँ Yes. ठीक है? सो vapor density is nothing but the molar mass of that particular gas divided by the density of hydrogen or the molar mass of hydrogen, simple as that, ठीक है? वेपर डेंसिटी के बारे में इन डेप्थ आगे जाके बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? वेपर डेंसिटी के बारे में इन डेप्थ आगे बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला नोट करके रखो डेंसिटी का। एंड वन मोर मेजरेबल प्रॉपर्टी इज I am tired of these spam calls. Hello guys, can you? Yes, sir. yes Sorry, yeah, sorry. See, what the thing is, I mounted my phone on over here, no? So इस पे ही call जाते हैं. I use only one phone. So rate of diffusion. You remember, guys? मैंने आप लोगों को diffusion बताया था. लास्ट लेक्चर में मैंने डिफ्यूजन क्या होता है ये आप लोग को बताया था, क्या आप लोग को याद है? Yes, sir. किसी एक को भी याद नहीं है आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स? अच्छा, एक को याद है। हाँ बेटा बोलो, कौन है? Yes, बोलो। Sir, transfer of substance from higher concentrated to low concentrated area. ओके, और रादर इन सिंपल लैंग्वेज मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में देखो कैमरा मोड़ के दरवाजा खोल के बंद करके दिखाया था, अंदर का गैस बाहर, बाहर का गैस अंदर डिफ्यूज। Yes, sir. राइट? सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी amount or volume of gas diffused, volume of gas diffused divided by time taken for diffusion, time taken for diffusion, time taken for diffusion. What is diffusion? A process in which a gas is moving from one place and going to other place. कितना गैस, दैट वॉल्यूम, उसको कितना टाइम लगा, उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे रेट, उसका स्पीड मिलेगा। So rate of diffusion simply means the speed of diffusion. Speed will be with respect to time बेटा, ठीक है? कितना गैस कितने टाइम में मिक्स हुआ, that is the rate of diffusion. Simple as that. Yes, no or maybe. sir. हाँ बेटा Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Got it. अच्छा, ओके कूल। ये लिख लिया सब लोग ने? हाँ sir. Yes, पूरा हाँ sir. sir Yes. अच्छा, I'm grabbing this from the board, huh? Sir, एक मिनट. Okay, okay. Just give me a second, I'll be back. हो गया sir. Yes, बेटा? yes sir Yes, sir. Measurable properties of a gas. Measurable properties. Pressure, volume, temperature, and number of moles.
ये पता है ना नंबर ऑफ मोल्स, Yes, sir. ठीक है? Yes. If I have say 2 moles of water, how many molecules of water am I having, guys? If I have 2 moles of water, how many molecules of water am I having? This should have been a very quick one बेटा. अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपको तुरंत आंसर देना चाहिए था मुझे. 2 into 6.022 into 10. कौन बोला? Mihir. मिहिर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सिंपल है ना? Avogadro's N number, into number of moles into Avogadro's number is going to give you the N number of into molecules. 6.022 6.022 into 10 to the power 23 या फिर Into 6.023 into 10 to the power 23. दोनों में से कोई भी एक नंबर करेक्ट है जो याद हो जाए आपको. ठीक सर है? ऐसा हो रहा है कि आपका आवाज अटक रहा है, स्क्रीन भी एकदम ऐसा अटक रहा है. Is it guys प्रॉब्लम हो रहा है मेरे आवाज में? Yes, sir. अटक रहा है. अभी ठीक आ रहा है? अभी एकदम ठीक है? Yes, yes. ये सर अभी ठीक है सर, लेकिन बीच बीच में अटकता है. तो मतलब स्टार्टिंग से अटक रहा है, लेक्चर के स्टार्टिंग से अटक रहा है? No, sir. Call आने. यस No, सर, मैं sir. कब से वही बता रहा था सर पहले से. अरे आई एम सो सॉरी यार, मुझे लगा मैं स्टार्टिंग से लेक्चर स्मूथली चल रहा है, मुझे लगा आप लोग को सुना ही आ रहा है, तो आप लोग बोले क्यों नहीं इतनी देर से? सर मेरे मोबाइल में सब क्लियर है. सर मैंने बोला था सर. अच्छा बेटा, लेकिन मुझे नहीं लगता सब लोग को ये इशू हो रहा होगा. Yes, sir. कुछ लोगों को क्लियर है ये, तो शायद कुछ के एंड से प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे. अभी ठीक है ना बेटा? लेकिन Yes, sir. ओके, PVTN, ठीक है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स. These parameters they define a gas. एक गैस को ये रूप देते हैं कि भाई मैं गैस बोल रहा हूं तो मैं दुनिया भर की गैस की बात कर सकता हूं. अगर मुझे एक स्पेसिफिक सैंपल की बात करनी है तो मुझे उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ठीक है बेटा? तो ये जो पीवीटी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं एन, ठीक है, इनको आपस में घुमा फिरा करके ये आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, ऑल दीज ये सब मिक्स करके अपने को मिलता है ऑल द वेरी फेमस गैस लॉ, द वेरी फेमस गैस लॉज. ठीक है बेटा? गैस लॉज. The first gas law which we are going to study is going to give you the relationship between the pressure and the volume of the gas when the temperature of the gas is constant and the number of moles is constant. बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दिया मैंने एक गैस का सैंपल दिया है आपको. ठीक है? मैंने एक गैस का सैंपल दिया है क्लोज्ड पिस्टन में. आपने कभी आपने तो देखा नहीं होगा, बट बाइक का सिलेंडर देखा है? चलो पकड़े को डिस्क. बाइक के सिलेंडर का एड देखा है आपने? वो देखो एक एड आता था बीच में, कैस्ट्रॉल का ऑयल डालो और गाड़ी अच्छे से चलेगी. ठीक है? उसके अंदर देखो एक ऐसा ये रहता है और सिलेंडर रहता है इस तरीके से, और ये ऊपर नीचे होता रहता है उसमें. यस Yes, sir. ठीक. So this is your cylinder. This is your cylinder and this is called as your piston. This is called as your piston. Piston सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है बेटा. ठीक है? अभी यहाँ पे गैस है, कोई भी गैस है. This I have gas molecules over here. तो अभी इस टाइम पे वॉल्यूम क्या है? इसका वॉल्यूम है V. ठीक है? और इसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर लग रहा है P. ठीक है? इसके ऊपर से आई कैन से P1 and V1. इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? ये आपको सामने दिख रहा है, और इस गैस का नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली फिक्स्ड रहेगा. अगर मैं सिर्फ इतने गैस को मॉलिक्यूल्स को पकड़ूंगा तो इसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, और इसका टेम्परेचर भी हमने बाहर से कांस्टेंट रखा हुआ है. टेम्परेचर को कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है? हम लोग सिर्फ दो चीज चेंज करेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ये आपको सामने दिख रहा है, करेक्ट है? Yes. This is the pressure and this is the volume. After some time, I will move the piston downwards. After some time, I will move the piston downwards. After some time, I am moving the piston downwards. जब ये piston नीचे आ जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही रहेगा ना बेटा, वो थोड़ी उड़ जाएगा इधर पे, नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रहेगा, है ना। Yes, sir. अब देखो वॉल्यूम ये हो गया है एंड प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया है, तो ये हो जाएगा V2 और P2। आपको सामने सामने दिख रहा है कि वॉल्यूम कम हो गया है और प्रेशर इंक्रीज हो गया है। Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये एक ही सिलेंडर है, इसको मैंने क्या किया, पिस्टन को मैंने नीचे मूव किया। जब मैं पिस्टन को प्रेशराइज करूंगा, प्रेशर में इंक्रीज करूंगा, ये जितना वॉल्यूम ऑफ गैस था वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के इतनी छोटी जगह में आ जाएगा। गाइस यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात है। So what relation is there? When you are increasing the pressure, the volume is becoming small, and when you are releasing the pressure, the volume is becoming big. अभी बेटा ये पिस्टन फिर से मूव हुआ ना ऊपर, देखो अगर मैंने प्रेशर रिलीज किया और पिस्टन को मैंने फिर से ऊपर की तरफ मूव कर दिया, ठीक है, P3, वॉल्यूम फिर से बढ़ गया। Yes, sir. तो प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ता, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम कम हो रहा बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. What kind of relation is this? This is inversely proportional. This is inversely proportional. ये proportions पढ़ा है तुम लोग ने, inversely proportional and directly proportional? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ये डायग्राम बना लो प्लीज, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। ये डायग्राम बना लो गाइस प्लीज। I want you guys to draw the diagram to understand the process ki what exactly are we studying over here. Is the concept clear with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. हाँ बेटा, Sir, what is the meaning of piston? piston is a rod which is creating pressure in the cylinder बेटा। वो बाइक का इंजन वगैरह में ऐसा ही सिस्टम रहता है, उसको पिस्टन बोलते हैं बेटा, ठीक है। Okay, sir. It is a rod like structure बेटा, piston is a rod like structure, Okay, sir. clear बेटा? Yes, sir. अच्छा, डायग्राम्स बना लिए सबने? No, sir. No, sir. Yes, sir. अच्छा, that Yes, sir. कोई तो बाहर है, कोई घर में नहीं है, बहुत आवाज आ रहा है गाड़ी का। ठीक है बच्चे, कैन आई क्लीन दिस? Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक मिनट सर। Yes, sir. ओके ओके, रुक सर जाइए। नीचे का सर, ऊपर का कब्जा सर, नीचे का रहने दो। अच्छा ओके। और ये तीनों टाइम करते वक्त ना टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था बेटा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था। अभी बेटा जब मैं वॉल्यूम को कंप्रेस करूंगा डेंसिटी बढ़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. में आ रहे हैं। What is density? Density is mass upon volume. यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है, मास उतना ही है, बट वॉल्यूम कम हो रहा है। जब डिनोमिनेटर कम होता है, रेशियो का वैल्यू ऊपर जाता है ना, Yes, sir. Yes, तो sir. डेंसिटी बढ़ेगा यहाँ पे। ओके अच्छा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालने के लिए आई विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, ठीक है। दैट मींस P into V is going to be constant. P into V is going to be constant. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ये है प्रेशर 1 into वॉल्यूम 1 is equal to प्रेशर 2 into वॉल्यूम 2। ये आप बोल सकते हो if PV is constant, इसका मतलब P1 V1 भी constant होगा।
T2 V2 भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। So if this is constant, this is constant, this is equal to this, simple as that, right? Yes, sir. Yes, sir. अभी जो हमने ये पढ़ा छोटा सा चीज, इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? This is known as Boyle's law. This is known as Boyle's law. तो मैं आपको Boyle's law का स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो आप सब लोग प्लीज लिखेंगे। Yes, sir. हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लिया, देख लिया। For a fixed mass, for a fixed number of moles of a gas, for a fixed number of moles of gas, Sir, for repeat. a fixed number of moles of gas at constant temperature, the pressure of a gas is inversely proportional to the volume of the gas. The pressure of the gas is inversely proportional to the volume of the gas. Mathematical derivation ये जो बोर्ड पे लिखा है वो लिख लो। Sir, repeat करोगे एक बार please? हाँ बेटा बिल्कुल। For a fixed number of moles of gas, for a fixed number of moles of a gas at constant temperature, the pressure of a gas is inversely proportional to the volume of the gas. ये लॉ हमको किसने दिया था? 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। रॉबर्ट बॉयल ने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स करके ढूंढा था कि भाई गैस का प्रेशर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम कम होता, उसका प्रेशर कम किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा आल्सो। अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इज दिस ओके गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंड यू ऑल अंडरस्टूड दिस? इसके ऊपर अपन को न्यूमेरिकल्स भी आएगा एग्जाम में। इसके ऊपर हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। यस सर। सर ये यूजुअली हाइड्रोलिक्स में यूज होता है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, ये हाइड्रोलिक्स में यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। से प्रेशर P एंड वॉल्यूम V। प्रेशर ये पता है कैसे होगा? इस तरीके से ग्राफ है, प्रेशर कम मतलब वॉल्यूम ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा मतलब वॉल्यूम कम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप ग्राफ पढ़ सकते हो बेटा। यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे इस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग प्रेशर ज्यादा है, राइट? और यहाँ पे देखो वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग प्रेशर कम है। आप समझ गए ग्राफ कैसे पढ़ना है आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे Yes, sir. वॉल्यूम कम है मतलब प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर कम है। सिंपल सी बात है, इनवर्स ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ को और डिटेल में कैसे पढ़ना है और अलग तरीके से हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्प्लीकेशंस, ये हम लोग आगे कल देखेंगे आप, ठीक है बेटा। यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं आप में से किसी को भी पूछूंगा बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन मुझे बताओ, मैं बोर्ड पे लिखूंगा। आप लोग को सब लोग को प्रिपेयर करके आना बेटा प्लीज, ठीक है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Everybody will do it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. I want everybody to learn the statement of